معاشی بہتری کے لیے سب کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار ہوں. ملک کی معیشت دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو چکی. معاشی استحکام کو اکنامک گروتھ میں بدلنا ہوگا. اڑان پروگرام سے معاشی ترقی اور خوشحالی آئے گی. IMF کو وقت آنے پر خدا حافظ کہہ دیں گے. اسٹاک مارکیٹ کی تیزی کو معیشت کے لیے استعمال کرنا ہے. کراچی روشنی کا شہر تھا. ایک زمانے میں اس کی روشنیاں ختم ہو چکی تھیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا اسٹاک ایکسچینج کی تقریب سے خطاب. وزیر اعظم کی پوڈ کاسٹنگ پر فیس لیس اسسمنٹ سسٹم کا افتتاح کر دیا گیا. تقریب سے خطاب میں ماضی میں قومی وسائل کی لوٹ مار کیے گئی اب رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں. جو ٹیکس کی شرح چل رہی ہے اس میں زیادہ بیرونی سرمایہ کاری نہیں آ سکتی. ہمارا ہدف حاصل سے زیادہ نہیں آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے. بہت جلد ٹیکسز کی کمی کریں گے. 400 ارب کا گیپ موجود ہے جو پورا ہوگا. ہم نے پہلے دن سے LBR پر توجہ کی ہوئی ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے 130 ارب ڈالر کا بیرونی قرضہ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں PDM حکومت نے ملک کو دیوانیہ ہونے سے بچایا. 9 سال پہلے لگایا گیا اسٹاک مارکیٹ کے انضمام کا پودا تناور درخت بن چکا. دن رات محنت کر کے ہم ترقی کریں گے. بیرونی اداروں پر انحصار کم کرنے کے لیے مقامی کیپٹل مارکیٹ کو مضبوط کرنا ہے. مواقع پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کشکول لے کر دوسرے ملکوں میں نہ جانا پڑے. So now the capital markets, inshallah, as we move towards sustainable growth, have to play an extremely important role. Ministry of Finance کے آپ نے کچھ ٹیکسیشن کی بات کی ہے, وہ انشاءاللہ ہم اس کو بجٹنگ پروسیس کو تھوڑا سا فارورڈ لے کر آ رہے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ منسٹر آف اسٹیٹ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. ہم جنوری فیبری میں آپ کے ساتھ انگیج کریں گے. اسٹاک ایکسچینج ترقی معیشت پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کا مظہر ہے. IMF کے ساتھ معاہدے سے معیشت استحکام کی راہ پر گامزن ہوئی. اسٹاک ایکسچینج نے ترقی کے سنگ میل عبور کیے. خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں میں اصلاحات کر رہے ہیں. بنیادی ڈھانچے میں اصلاحات کو متعارف کرانا ہے. وفاقی حکومت کے اخراجات میں کمی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب. جو بچے ملک میں کسی کے بہکاوے میں آ گئے, انہوں نے آگ لگا دی, انہوں نے گولیاں چلا دیں, آج وہ بچے اپنے بچے آرام سے بیٹھے, آج وہ بچے جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں. جو آپ کو یہ کہتا ہے اپنے ملک کو جلا دو, میٹرو بس کو توڑ دو, گھیراؤ کر لو, ایک صوبے کو کہتا ہے دوسرے صوبے پہ حملہ کر دو, وہ آپ کا سگا نہیں ہے, وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہے. میں آج آپ سے یہ وعدہ لے کے جاؤں گی, کچھ بھی ہو جائے آپ اس ملک کے خلاف نہیں جاؤ گے. جو ایک صوبے پر دوسرے صوبے پر حملے کرائے, ایک صوبے سے دوسرے صوبوں پر حملے کرانے والا آپ کا ہمدرد نہیں. ہر کوئی آج عہد کرے اپنی ذمہ داری کو پہچانے. جو بچے کسی کے بہکاوے میں آ گئے, انہوں نے آگ لگائی, گولیاں چلائیں, وہ آج جیلوں میں ہیں. حسان نیازی نے فوجی وردی کی تصدیق کی. جو آپ کو کہتا ہے اپنے ملک کو جلا دو, میٹرو بس جلا دو, توڑ دو, بچے سنی سنائی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین نہ کریں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سرگودا میں تقریب سے خطاب. جہاں تک ان کی رہائی کے پریشر سے متعلق بات ہے تو پریشر تو صرف ان کے زبانی کلامی بیانات کا ہی ہے کہ جو وہ دن رات جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ پراپیگنڈا کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ تو کوئی پریشر نہیں ہے. یہ ایک ایسی جماعت جو کہ ہر دوسری سیاسی جماعت سے بھی جو ہے وہ لڑ رہی ہے, آپس میں بھی جو ہے وہ یہ لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف بھی جو ہے وہ سازش کر رہے ہیں. بانیہ PTI کی رہائی کے لیے کوئی دباؤ نہیں, یہ پروپیگنڈا کر رہی ہیں. جھوٹ کی سیاست ان کا وتیرہ ہے. انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ بانی کو جیل میں سہولتیں میسر نہیں. بانی کو جیل میں تمام سہولتیں دستیاب ہیں. بانی کے قریبی لوگوں سے اچھے کی توقع نہیں. یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. ہم قومی مفاد میں ڈائلاگ چاہتے ہیں, اسی لیے کمیٹی بنائی گئی. علیمہ خان نے انتشار پھیلایا, علیمین نے بھی غلط فہمیاں پیدا کی. رانا ثناءاللہ کی نیوز کانفرنس. حکومت اور PTI کے مذاکرات میں ڈیڈ لاک. اسپیکر قومی اسمبلی یا صادق پر PTI رہنماؤں کے الزامات پر اسپیکر آفس کا رد عمل. PTI رہنماؤں کے اسپیکر سے رابطے نہ ہونے کا کچا چٹھا بھی کھول دیا. ذرائع اسپیکر آفس نے کہا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور شیخ وقاص اکرم نے اسپیکر کو کوئی کال نہیں کی. شیر افضل کا وائس میسج آیا تھا جس کا اسپیکر نے جواب دیا. اسپیکر کا کردار مذاکرات میں سہولت کاری کرنا ہے, بانی سے ملاقات کرانا نہیں.
खान साहब ने परमिशन दी है, तो जो हमारे 2 मुतालिबात है, आल्दो उसकी इन राइटिंग देने की कोई जरूरत नहीं, पर हम नहीं चाहते कि इसको जवाज बना करके ऐसा कि, लेकिन खान साहब ने कहा है कि आप बेशक इन राइटिंग दे दे, तो वो हम इन राइटिंग दे देंगे। जहां तक डील का ताल्लुक है, तो उसका तासुर खान साहब भी जाहिर कर चुके, हम भी कह चुके और सब डिनाई कर रहे हैं कि ये किसी डील के लिए नहीं है। हम चाह रहे हैं कि मुल्क और कौम के लिए हम बैठे हैं एक लिमिटेड पर्पस के लिए कि आप कमीशन बना लें और आप जो रिहाई है ये होनी चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई ने तहरीरी मुतालबात देने की इजाज़त दे दी। बानी पीटीआई की हिदायत पर मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमत को देंगे। बानी ने कहा मुज़ाकरात के लिए एक और नशिस्त होना ज़रूरी है। बानी ने कहा कि इस बार मुलाकात ना हुई तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं, मुल्क और कौम के लिए कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के खतर बैठना चाहते हैं, पाकिस्तान के खातिर मुज़ाकरात को कामयाब करना चाहते हैं, सिंसियरिटी से बैठे हैं और हम समझते हैं कि जब आप अपने मुल्क के लिए सोचेंगे, अपने लोगों के लिए सोचेंगे, तो फिर जो है ना सबको एक संजीदगी के साथ और सिंसियरिटी के साथ बैठना चाहिए। मैं मुतालबा करता हूँ कि हमारी मुलाकात जल्द से जल्द मुलाकात की इंतज़ाम की जाए ताकि ये मुज़ाकरात आगे बढ़ सके। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई गई, इसीलिए मुज़ाकरात में डर है। हुकूमत अगर संजीदा है तो हम भी पाकिस्तान की खातिर सब कुछ कर रहे हैं। पीटीआई चाहती है हम आगे बढ़ें, मुज़ाकरात में संजीदगी के साथ बैठें। इस वक्त पाकिस्तान में कोई आईन कानून नहीं, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। मिलिट्री ट्रायल के हवाले से एक फैसला आया, हम अपनी आवाज़ मुअज़्ज़ज़ जजेस तक पहुँचाना चाहते हैं। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। अमन जो एक काफ़िला था या जो एक कॉन्वॉय था, अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफली जो है वो मूव कर गया है और जो हमारी कुछ गाड़ियाँ है वो रोड ओपनिंग के बाद पहुंच भी गई है और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही खुश आइन जो फ़ेल है वो आज स्टार्ट हो गया है। अमन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी ये प्रोसेस चलता रहेगा। आवाम से दरख्वास्त है कि इस प्रोसेस में हमारे साथ मुकम्मल ताउन करें। कई रोज फंसे रहने के बाद अशिया खुरनोश और जरूरी अशिया पर मुश्तमिल पहला काफिला पारा चिनार पहुंच गया। डिप्टी कमिश्नर कुरम ने तस्दीक कर दी। डीसी ने जारी बयान में कहा कि गाड़ियों का पहला काफिला पारा चिनार पहुंच चुका है। काफिले का अमन से पारा चिनार पहुंचना बहुत खुशाइन है। डिप्टी कमिश्नर पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अवाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें और अमन कायम करें। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल की केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने रिमार्क्स दिए, आइन के मुताबिक भी रूल्स मुअत्तल होते हैं, खत्म नहीं। आर्टिकल 5 के मुताबिक भी राइट्स मुअत्तल नहीं हो सकते। पार्लियामेंट चाहे तो कल कानून बना दे, तिरछी आंख से देखना जुर्म है। इस जुर्म का ट्रायल कहाँ होगा, वो अदालत कायम करना भी पार्लियामेंट की आइनी जिम्मेदारी है। कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने वकील वज़ारत दिफा ख्वाजा हारिस से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए, ख्वाजा साहब लगता है आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं। 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की कुछ दिफात कलदम की हैं। अगर हम भी इन दिफात को कलदम रखें फिर तो सिविलियन का फौजी ट्रायल हो ही नहीं सकता। अगर किसी और नतीजे पर पहुंचे तो तय करना होगा कौन से सिविलियन का फौजी ट्रायल हो सकता है। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा अक्सरियती फैसले में आर्टिकल 8, 3 और 8(5) की गलत तशरीह की गई। पीटीआई रहनुमाओं का बानी पीटीआई की नाअहली पर एहतजाज का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गैर हाजिरी पर वज़ीर आला KP अमीन गंडापुर और उमर तनवीर भट्ट को इश्तिहारी करार दे दिया। इश्तिहारी मुल्ज़मान के खिलाफ केस की कार्रवाई दीगर मुल्ज़मान से अलग कर दी गई। आमिर कयानी के खिलाफ इश्तिहारी करार देने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया। दरख्वास्तों पर दलाइल भी तलब। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने मजीद समाअत की। मजीद समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई।
वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा वज़ीर आला मरीम नवाज तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स के बाद स्कॉलरशिप दे रही हैं। मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुकाबला जो नहीं कर सकते वो गलाजत के ढेर इन पर कीचड़ उछालने में लगे हैं। मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वालों को मुआफ़िया NRO नहीं मिलते। 9 मई और 26 नवंबर की नाकाम बगावतें नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग का नतीजा है। जो चोर दरवाजों से इक़्तिदार पर काबिज होते वो कौम के बच्चों के हाथ पेट्रोल बम और गुलेलें थमाते हैं। मैं अपोजिशन के बयान पे क्यों बात करूं? मैंने जो कहा था मैं आज भी वही कह रहा हूं कि जैसे ही मुआहदा हो गया हमने सड़क खोलने की बात की और अगले एक दिन के बाद, एक वक्फे के बाद हमने जो है वो कॉन्वॉय को मूव करना था। मैं खुद वहाँ मौजूद था जब डिप्टी कमिश्नर साहब पर फायरिंग हुई। तो हम तो रास्ता खोल रहे हैं और जो मैंने जिस तरह कहा था उसी तरह हमने खोलना था। लेकिन जब ये वाक़या हो गया तो ज़ाहिर है अब ये तो नहीं हो सकता कि वहाँ पर गोलियाँ चल रही हैं और हम काफ़िला आगे बढ़ाएं और मज़ीद रिस्क लें। अपोजिशन को कहने दें, उनके पास इन इल्ज़ामात के अलावा और है क्या? अगर कोई मुज़ाकरात पे मसलहत हुकूमत की तरफ से है, हम इनका मुकाबला करते रहेंगे जब तक पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत आज़ाद नहीं होती। PTI के कारकुनान हाई कोर्ट में रोज़ाना पेश होते हैं, अमन के नफाज के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कुरम का मुआहदा हो चुका, दोनों फरीकैन के नुमाइंदगान ने दस्तखत किए। अद्वियात, खुराक और जो मसाइल हैं इनको जल्द ही खत्म किया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बनाने की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कनाडा अमेरिका के साथ जम हो जाए तो कोई टैक्स नहीं होगा। कनाडा में बहुत से लोग अमेरिका की 51वीं रियासत बनना चाहते हैं। कनाडा को जिंदा रखने के लिए अमेरिका तजारती खसारा और सब्सिडी से मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इन बातों का जस्टिस ट्रूडो को इल्म था, इसीलिए इस्तीफा दिया। कनाडा क़यामत तक अमेरिका में दम नहीं होगा। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ट्रूडो का ट्रंप को दो जवाब। पाक अफगान जंग, वाखान में बड़ी कार्रवाई, फौज का हुक्म, तालिबान की चीखें, चीन रूस की बड़ी पेशकश, काबुल पर भी कब्जा हो गया। ब्रिगेडियर का बड़ा दावा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान ने निजी टीवी से गुफ्तगू में खित्ते में खेली जाने वाली ग्रेट गेम पर बात करते हुए कहा कि अफगान सरजमीन पर पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर जमा हो रहे हैं। अफगानों का झुकाव इंडिया की तरफ है। उन्होंने अपना दिफाई तज्जिया पेश करते हुए बताया कि वाखान की सरहद गिलगित बल्तिस्तान से मिलती है। ये बड़ा स्ट्रेटेजिक इलाका है। दूसरी साइड पर ताजिकिस्तान है, जहां 2002 में इंडिया ने अपना बेस कायम कर लिया था। वहां से वो नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करते थे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान ने कहा, भारत, अमेरिका और इसराइल अब खुलकर सामने आ चुके हैं। उनका मकसद पाकिस्तान और चीन को गैर मुस्तहकम करना और CPEC जैसे अजीम मंसूबे को नाकाम बनाना है।